Hello students, welcome to Adishri Publication. In our today's class, we are going to see your chapter number 14. This is also your last chapter of EVS book 3. And the name of your chapter number 14 is From Here to There. Okay, means in this chapter, my dear student, we all are going to see the transportation system. Okay, so what are the concept overview we are going to see here? What is transportation? Okay, various means of transport, special vehicles, future means of transportation. Okay, now curricular goals. Understand different modes of transport: land, water, air. Okay, in this chapter we are going to understand the different modes of transport: land transport, water transport, and air transport. Okay, learn the need and use of transportation in daily life. Okay, we are also going to learn about the uses and why we need transportation in our daily life. And the last, identify old and modern means of transport. Okay, now the world is very big. It has many different places. People living in this world need to travel from one place to another for different reasons. Humans cannot cover the large distance on foot. So we need to have various means of transportation. See, our planet Earth is really very big. Okay, so it is not possible for the human beings to explore each and every area barefoot. Okay, it is not important. Okay, it is not possible also. Okay, that's why, my dear student, we developed the concept of transportation. Okay, so what is the meaning of transportation? Transportation means a mode through which we move from one place to another place. Okay, so what is transportation? So this is the definition and proper meaning of transportation: the movement of people the movement of people and goods from one place to another by using vehicles like, देखिए ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? लोगों का और गुड्स का. सी, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब कभी भी ये नहीं कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स ट्रैवल कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं. हम सामानों को भी यहां से वहां भेजते हैं. ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लाइक cars, buses, trains, ships, and aeroplanes. It's called transportation. Okay. Now the next topic which we are going to discuss here is various means of transport. Okay, we have many modes of transportation. So the first means of transport, that is land transport. Okay, so what is the meaning of land transport? See, this mode of transport is of two types: road and railway. Our land transport is divided into broadly two categories. Okay, road transport and railway transport. Trucks, buses, cars, cycle, रिक्शा, टोंगा, बुलक कार्ट्स आर मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट. तो रोड ट्रांसपोर्ट पे कौन कौन सी चीजें चलती हैं? हमारी ट्रक्स, बसेस, कार, साइकिल, टोंगा एक्सेट्रा. ये सब हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल्स हैं. लैंड ट्रांसपोर्ट में रोड ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है. ठीक है, रेलवेज यूज द रेल्स ऑन विच रेलवे इंजन एंड कैरेजेस मूव. अब रेलवेज क्या होती हैं? ये रेलवे लाइन पे चलती है, रेलवे ट्रैक्स पे चलती है. इसमें इंजन लगा होता है और साथ ही इसके कैरेजेस भी होती है पीछे. ठीक है, अ ट्रेन हैज मैनी कोचेस that can carry between 100 to 10,000 person at a time. और एक ट्रेन के अंदर बहुत सारे कोचेस लगे होते हैं और इस ट्रेन में एक साथ thousands of लोग ट्रैवल कर सकते हैं. ठीक है, बसेस कैरी बिटवीन 50 to 100% एट अ टाइम. और एक बस में एक टाइम पे 50 to 100% ट्रैवल कर सकते हैं, persons ट्रैवल कर सकते. ओके, सो हियर यू कैन सी देयर आर द सम पिक्चर्स ऑफ आवर लैंड ट्रांसपोर्ट. ओके, बस, कार, बाइसाइकिल, टोंगा, रिक्शा, train, and metro. Okay, see, my dear students, we have three modes of transportation: land transportation, water transportation, and air transportation. Our land transportation is divided into two parts: road and railway. Okay, so bus, car, bicycle, tonga, rickshaw, they all are example of road transport, whereas train and metro, they are example of railway transport. Okay, now the local trains in Mumbai are the lifeline of the people living there. ठीक है, मुंबई हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया का. ठीक है, वहां पे कौन सी लाइफलाइन है? मुंबई की लाइफलाइन किसको कहा जाता है? लोकल ट्रेन्स को कहा जाता है. ठीक है, मेट्रो ट्रेन्स रन इन सिटीज लाइक मुंबई, नागपुर, दिल्ली, कोलकाता, मेरठ एक्सेट्रा. और हमारी बहुत सारी मेट्रो सिटीज जैसे दिल्ली है, मुंबई है, नागपुर, कोलकाता, यहाँ पे हमारी मेट्रो ट्रेन्स चलती हैं. ठीक है, दे कैरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके, एंड देयर बेसिक
function is to carry people from one place to another place. Metro trains are being planned for many more cities. Okay, metro train सिर्फ एक शहर में नहीं, जैसे लोकल ट्रेन बेसिकली आपके मुंबई में ही है, ठीक है, इसके अलावा और भी सिटीज में है, लेकिन फेमस आपका मुंबई का लोकल ट्रेन है, ठीक है। मेट्रोस जो है, मेट्रोस हमारे सिर्फ दिल्ली में नहीं है, बहुत सारी और सिटीज में भी हैं, ठीक है ना। Early man traveled either on foot or with the help of animals such as horses or donkeys. Okay, now what about early man? Early man कैसे travel करते थे, ठीक है। early man या तो barefoot travel करते थे या फिर वो कुछ animals का use करते थे जैसे donkeys और horses का traveling purpose के लिए। After the invention of wheel, tongas, bullock carts, etc. were developed and used. And after the invention of wheel, my dear student, tongas, bullock carts, etc. other land transportations are developed. Now, Truth Bank, let's see. The first train in India was run between Mumbai to Thane on 16th April 1853. The journey took around 45 minutes. हमारे इंडिया में रेलवे सबसे ज्यादा क्या है, कॉमन है, ठीक है, और हमारे इंडिया का रेलवे नेटवर्क माय डियर स्टूडेंट्स हमारे वर्ल्ड का सबसे बड़ा, एक तरीके से सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, ठीक है। एशिया में सबसे बड़ा है, वर्ल्ड में सेकेंड है, ठीक है। देखिए हमारे इंडिया में जो सबसे पहले ट्रेन चली थी वो चली थी मुंबई से थाने के बीच में 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है। और इसकी जो जर्नी थी यानी मुंबई से थाने महाराष्ट्र में चली थी ये, तो इसकी जो डिस्टेंस था, जो ट्रेन इस ट्रेन ने जो जर्नी कवर की थी वो थी 45 मिनट्स की जर्नी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर लैंड ट्रांसपोर्ट। नाउ कम विद मी, लेट्स सी द वाटर ट्रांसपोर्ट। The new means of transport have helped us to move faster. Okay, boats, sailboats, motorboats, steamers, and ships travel on water. Okay, water transports are also really very helpful for moving person and goods from one place to another place. Okay, and the example of water transport: boats, sailboats, motorboats, steamers, and ships. These all are the example of our water transport. मोटर बोट्स, स्टीमर्स एंड शिप्स हैव इंजन्स। तो मोटर बोट्स में, शिप्स में, स्टीमर्स में इंजन लगे होते हैं, ठीक है। सबमरीन्स आर शिप्स दैट कैन ट्रैवल अंडर द वाटर। और हमारे पास एक ऐसी भी शिप है जो पानी के अंदर चलती है, ये सब तो पानी के ऊपर चलते हैं, लेकिन सबमरीन्स वो होते हैं जो पानी के नीचे रहते हैं, ठीक है। Water transport is slower than land and air transport, but a large number of people or goods can be transported by ships to far off places. देखिए, water transport land और air का comparison में बहुत slow है, लेकिन सबसे ज्यादा goods अगर कोई carry करता है एक जगह से दूसरी जगह तो वो water transport है, ठीक है। Cargo ships कैरी गुड्स, तो कौन से वो शिप्स होती हैं जो गुड्स को कैरी करती हैं, उनको हम कार्गो शिप्स कहते हैं। दे आर लोडेड एंड अनलोडेड एट पोर्ट्स, ठीक है। इनको लोड और अनलोड किया जाता है पोर्ट्स पे, ठीक है। ये आपके सी के किनारे होते हैं। क्रूज लाइनर्स कैरी मोर देन 1000 पीपल। अब क्रूज जो हमारे होते हैं इसमें पैसेंजर्स को कैरी किया जाता है, एंड क्रूज कैन कैरी एट अ मोमेंट मोर देन 1000 पर्सन। ओके, सो यू कैन सी माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ शिप, दिस इज बोट एंड दिस इज submarine. Okay, now our last mode of transportation, that is air transport. Okay, aeroplanes and helicopters are the fastest means of transport. Aeroplanes carry passengers as well as goods. They land and take off from the airports. तो air transport में हमारा हेलीकॉप्टर है और हमारे एरोप्लेन है, ठीक है। एरोप्लेन यानी एयर ट्रांसपोर्ट जो है हमारा सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। यहाँ पे पैसेंजर्स और गुड्स दोनों को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, ठीक है। तो जो फ्लाइट हमारी है यानी जो हमारा एरोप्लेन है ये एयरपोर्ट पे टेक ऑफ करती है और लैंड करती है, ठीक है। नाउ हियर सम ब्रेन ब्लिट्ज क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे। पहला है, हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाय एयर और वाटर? कभी भी आपने एयर या वाटर के थ्रू एयर या वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रेवल किया है? किया है तो यस होगा, नहीं किया है तो नो होगा इसका आंसर, ठीक है। नेम टू मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट का कोई भी दो मीन्स आप बताओगे, ठीक है। देन थर्ड, नेम टू मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। ओके, so you can say this is our aeroplane and this is our helicopter. Now my dear student, we are going to see about some special vehicles. Okay, so these all are the modes of our transportation. Apart from them, we also have some special kind of vehicles. Now what are those vehicles? Let's see. Special vehicles. Some special vehicles are used for special purposes. देखिए इनका नाम ही स्पेशल व्हीकल है, मतलब ये किसी एक काम को, कोई एक स्पेशल काम को करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे पुलिस वैन। ओके, सो द फर्स्ट टाइप ऑफ स्पेशल व्हीकल इज पुलिस वैन। ओके,
Police van. Sometimes we see police vans moving around the city. These vehicles are used to carry police personnel from one place to another. ठीक है, आप लोग देखते हो ना पुलिस वैन्स ट्रैवल करती है, पेट्रोलिंग पे निकलती हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस के जरिए ही यूज किया जाता है. ठीक है, उसको कोई और यूज नहीं कर सकता है. ठीक है, नाउ द सेकंड टाइप ऑफ स्पेशल व्हीकल इज एम्बुलेंस. ओके, An ambulance is a special vehicle that is used to carry sick or injured people to the hospital. Ambulance क्या है? Ambulance एक ऐसा vehicle है जिसमें किसी को चोट लगी हो या कोई बीमार हो, उस पर्सन को मतलब उस पर्सन को हॉस्पिटल ले जाने के लिए काम में इस व्हीकल को इस्तेमाल किया जाता है. स्पेशल मेडिकल इक्विपमेंट्स आर फिटेड इन सच व्हीकल टू हेल्प द पेशेंट. और एम्बुलेंस में जो ये व्हीकल, इसमें बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स लगे होते हैं ताकि पेशेंट की ये हेल्प कर पाए. ठीक है, नाउ द थर्ड टाइप ऑफ स्पेशल vehicle is postal van. Postal vans are used by the postal department to carry letters from the post office. ठीक है, तो postal vans, my dear students, वो vans होते हैं जिसमें आपके letters या फिर post office से जितनी भी चीजें आई हैं उसको कैरी करने के लिए. ये रेड कलर की होती है. ठीक है, now the next type of special vehicle is fire engine. ठीक है, fire engine is used to use the fire. These specially designed vehicles have a large water tank, pump and a long hose pipe to extinguish the fire. ठीक है, जो फायर इंजन्स होते हैं ये भी रेड कलर के व्हीकल्स होते हैं और इसमें ना काफी बड़ा वाटर कैनन होता है, पानी, क्योंकि फायर के ये बुझाने जा रहे हैं तो आग को पानी बुझा सकता है. ठीक है, तो इसमें कई बहुत बड़ा सा वाटर टैंक होता है, पंप होता है, इसमें स्पेशल एक स्लाइडर भी होता है. ठीक है, उसी पे चढ़ के हमारे फायरमैन क्या करते हैं, आग बुझाते हैं. ठीक है, सो दिस ऑल आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्पेशल व्हीकल्स. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी आल्सो हैव सम फ्यूचर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. व्हाट आर दोस? लेट्स सी. पेट्रोल, डीजल एंड गैस pollute the air. हमारे ये सारे व्हीकल्स ना पेट्रोल, डीजल या गैसेस पे रन करते हैं. ठीक है, लेकिन इनकी वजह से पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. ठीक है, सोलर एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी आर नाउ यूज्ड टू रन व्हीकल्स. तो इनके रिप्लेसमेंट के तौर पे हम लोग सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं व्हीकल्स को रन करने के लिए. हाइड्रोजन गैस इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड. ठीक है, हाइड्रोजन गैस का भी यूज कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, ये व्हीकल्स को रन करने के लिए. मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन व्हीकल्स इनेबल्स लेस फ्यूल कंजम्पशन. ठीक है, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से पोल्यूशन काफी हद तक कम हो सकता है व्हीकल्स के थ्रू जो फैल रहा है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर. नाउ कम विद मी एंड लेट्स सी द क्विक रिकैप ऑफ दिस चैप्टर. See, the movement of people or goods from one place to another is called transportation. What is the meaning of transportation? The movement of human beings and goods from one place to another is called transportation. Early man traveled on foot or with the help of animals. Early man या तो barefoot travel करते थे या फिर एनिमल्स की हेल्प लेके ट्रैवलिंग करते थे. ठीक है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो हमारे पास मेनली 3 टाइप के ट्रांसपोर्ट है, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट. ठीक है, ट्रेन्स, कार्स, बसेस, बाइसाइकल्स मूव ऑन लैंड. तो कौन कौन से व्हीकल्स हमारे लैंड पे मूव करते हैं? ट्रेन, कार, बस, बाइसाइकल्स. ठीक है, शिप्स एंड बोट्स मूव ऑन वाटर. शिप्स और बोट्स पानी पे चलते हैं. एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स मूव इन द एयर. एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स एयर में मूव करते हैं. ठीक है, सोलर एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी आर यूज्ड टू रन व्हीकल्स. ठीक है, तो सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी का यूज हमारे फ्यूचर में हो रहा है, अभी भी होगा और हमारे अभी हो रहा है और फ्यूचर में भी होगा व्हीकल्स को रन करने के लिए. ठीक है, so my dear student, here our chapter ends. Just go thoroughly through this chapter and complete the self evaluation of question answer section of this chapter. Okay, now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with your new book and with a new chapter also. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.